So my dear kids, so this is the tabular column where I'm going to represent the physics syllabus with weightage and number of hours teaching. Okay. So chapter number 1 and the chapter name is physical world. ठीक है? Physical world. So number of hours of teaching we are going to see afterwards. Weightage of marks we are going to see afterwards. We are going to write afterwards everything, right? So the second one is units and measurements. ठीक है? सेकेंड चैप्टर कौन सा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट. तो बच्चों इस चीज को आप एक बार अगर आपके पास नोट डाउन के लिए पेन एंड नोटबुक आप रख के बैठे हो, सो प्लीज नोट इट डाउन सो दैट इट शुड गेट प्रैक्टिस विथ यू. फाइन. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो एग्जाम के टाइम में इतना दिमाग में रहेगा कि कौन सा वाला बहुत ज्यादा पढ़ना है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? सो क्लियरली इज इट विजिबल? फोर्थ वन, फोर्थ चैप्टर, मोशन इन अ प्लेन. ठीक है? या so the fifth one, uh, laws of motion. ठीक है? laws of motion. तो सिक्स्थ वन जो है वर्क एनर्जी एंड पावर. ओके. सेवेंथ वन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल रोटेशनल मोशन. तो आरएम लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत. आरएम मीन्स रोटेशनल मोशन. फाइन. एट वन ग्रेविटेशन चैप्टर. ठीक है? कौन सा वाला? ग्रेविटेशन. ओके. सो नाइन्थ वन मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ठीक है ना? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है? ओके. 11th वन. 10th तक हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. नाउ द 11th वन, थर्मल थर्मल प्रॉपर्टीज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है ना? द 12th वन, thermodynamics thermodynamics. Wait. So thermodynamics. ठीक है ना? So the 13th chapter is kinetic theory. Kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. So the 14th one is oscillations chapter. And 15th one is waves. ठीक है? So this is all about chapter numbers as well as chapter names. So number of hours of teaching as well as weightage of marks. ठीक है? ये क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा है यार? Okay, wait. So I'm going to use here is brown color. So number of hours of teaching
For physical world, it is 2. For units and measurements, it is 4. For motion in a straight line, it is 8. So for motion in a plane, 12 number of hours of teaching. For laws of motion, 11. Work, energy and power, 11. System of particles, 12. ठीक है. Then for gravitation, it is 9 hours. For mechanical properties of solids, 5. Mechanical properties of fluids, 5. फिर thermal properties of matter के लिए wait कीजिए, it's not 12, it's 10. ठीक है. Then thermodynamics के लिए 8 hours. फिर kinetic theory of gases के लिए 5. Oscillations के लिए 8. Then for waves it is 10. So these are the number of hours of teachings. So weightage of marks it is carrying. For physical world it is 2. For units and measurements it is 3. Then motion in a straight line it is 7. For motion in a plane it is 11. For laws of motion it is 10. For work, energy and power it is 10. For system of particles and rotational motion it is 10, right? So then फिर बाद में gravitation के लिए 8 marks. Mechanical properties of solids as well as mechanical properties of fluids, it is 4 and 4. So then thermal properties of matter के लिए 9. Then thermodynamics के लिए 7. Kinetic theory of gases फिर 4. फिर बाद में oscillations के लिए 7 marks and waves के लिए 9 marks. So this is over, my dear kids. This is the pattern of the weightage as well as number of hours of teaching. ठीक है. Wait for a while. यहाँ पे ये जो यूनिट वाला ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं. वेट, चलो इसको कवर कर दिया. सो देन यहाँ पे भी इसको कवर कर दिया. चलो, सो देन इन बिटवीन ये तो ठीक है. 9, 10, 11 यहाँ पे. ओके, दिस इज ऑल्सो कवर्ड. फाइन, इतना तो है वैसे. रेड कलर. See, my dear kids, this is unit 1. Now unit 2. So unit 3rd, unit 4th, unit 5th, unit 6th, unit 7th, unit 8th, unit 9th, है ना. सो फिर यहाँ पे एक काम वेट कीजिएगा. दिस वन. यूनिट 10th, ठीक है ना. So what is the usage of this, sir? Why you are making that unit wise distribution of the chapters? क्यों कर रहे हो आप? इसका यूज क्या है? Let me tell you one thing, my dear kids. Basically, into your final exams of the physics theory, it will be carrying 70 marks for theory. ठीक है? 70 marks theory के रहेंगे and 30 marks for practical. Okay. Now, out of 70 marks, the 15 marks, 15 कितने marks? 15 marks. 15 marks. यहाँ पे देखो नीचे 15 marks will be carrying numericals. क्या रहेंगे इसमें? Numericals रहेंगे. अरे यार, शी. Okay, it's okay. Numericals. Is that okay? You people are listening my voice, my dear kids? Is it audible? So 15 marks जो रहते हैं ना, 15 marks, it will be related to numericals. Fine. So
each numerical carrying 5 marks. तो कितने न्यूमेरिकल्स होने चाहिए? बेसिकली वी हैव टू सॉल्व 3, लेकिन न्यूमेरिकल्स कितने दिए रहेंगे? They will be going to give you 5 numericals. Out of 5 numericals you need to solve 3, मतलब 2 जो रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है? तो आपको चॉइसिंग वाला ऑप्शन मिलेगा. But what is the usage of unit numbers, sir? Why you are saying this unit numbers? Why you are distributing, bifurcating unit wise chapters? My dear kids, listen up here. So first and second unit carrying one numerical. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Out of these 4 chapters, they are going to give you one numericals, only one numerical. एक प्रॉब्लम रहेगा चारों चैप्टर्स में से. We all know that physical world is a small chapter. ठीक है, ये छोटा चैप्टर है, and possibility of asking numerical from the units and measurements will be very much less. So ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कहां से पूछ सकते हैं? From the third and fourth. If there is any possibility, they may ask from the units and measurements. If there any possibility है नहीं, वैसे कम है. So maximum possibility they are going to ask, okay, they are going to ask from the third and fourth chapter. तो पहला वाला न्यूमेरिकल फर्स्ट या सेकंड यूनिट से पूछेंगे या थर्ड या फोर्थ चैप्टर से पूछेंगे. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना? नाउ द सेकंड न्यूमेरिकल they are going to ask you from the third and fourth unit. सेकंड न्यूमेरिकल, क्या ये बात क्लियर हो रही है? या so the third numerical they are going to ask you from the fifth and sixth. कोई भी 2 यूनिट से ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, उसमें से एक. फाइन, ओके. नाउ द फोर्थ न्यूमेरिकल इट मे बी फ्रॉम 7th and 8th यूनिट. ठीक है, अभी ये 7th and 8th यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, है ना, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स. सो मैक्सिमम टाइम्स उनका जो पर्पस होता है आस्किंग ऑफ न्यूमेरिकल्स, इट विल बी फ्रॉम दीज टू. ओके, द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी विल बी फ्रॉम द, अगर नहीं पूछा इन दोनों से, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एज वेल एज थर्मोडायनामिक्स, they may ask the numerical from the mechanical properties of fluids. तो सॉलिड से बहुत कम है पॉसिबिलिटी, बहुत कम. ओके, सो gravitation, system of particles and rotational motion, and these chapters are highlighting through, means from which the numericals will get asked. ठीक है, and the unit, which unit? The 9th as well as 10th. From this again they are going to ask the 5th numerical, last numerical. So out of 14th and 15th, 14 और 15 के बीच में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं. So kinetic theory of gases, so the weightage will be 4 marks है. ठीक है, so the numerical is carrying 5 marks. So possibility of asking numericals from oscillation and waves. तो न्यूमेरिकल्स किससे नहीं पूछ सकते? ज्यादा से ज्यादा 9th, 13th, सेकेंड एंड फर्स्ट, 4 चैप्टर्स को एक्सक्लूड कर दिया तो रिमेनिंग 14 चैप्टर्स. एंड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इससे भी नहीं है, फ्लूइड से. ओके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, बट देयर में भी, कहते हैं ना, एक्सेप्शनल केस, दे मे आस्क फ्रॉम दैट. फाइन सर, एक्सेप्शनल केस में क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेप्शनल केस में आपको लिक्विड प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा. ओके, सो लिक्विड कॉलम जिसका प्रेशर रहता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो या लिक्विड प्रेशर कह लो, यू आर गोइंग टू फाइंड दैट देयर. ओके, सो वो वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे. फाइन, सो इज दैट ओके नाउ? क्या पूरा ये पैटर्न समझ में आया सिलेबस का बच्चों? एनी डिफिकल्टी ओवर दिस? फाइन, ओके. नो सर, परिजन, आर यू गेटिंग? परिजन, नो डाउट सर. हाँ, डाउट लिखो ना बीच में, नो डाउट सर. नो सर मीन्स व्हाट? ओके, चलो. So let me rub this, my dear kids. It's clear. Fine. Thank you. Thank you everyone. That everyone is getting that. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, great बात है. वरना मेरा पढ़ाना मुझे ही समझ में नहीं आता है क्या पढ़ाता हूँ मैं. Okay. Fine. Okay. So shall I rub this one? इसको रब करें?
चलो इसको रब कर देते हैं। आई एम गोइंग टू पुट दिस रिकॉर्डिंग इनटू द ग्रुप, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलो रब किया इसको ढंग से। आफ्टर दिस क्वेश्चन पेपर पैटर्न, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स। क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। सो ईच एंड एवरी बेसिक वी नीड टू नो, सब्जेक्ट का, एग्जाम पैटर्न का, these are mandatory. Unless until we come to know the mandatory things, we cannot get that right, है ना, हमको पता नहीं चलेगा। yes, so theory exam for class 11, hmm? म्यूट करना पड़ेगा इसको, चलो ओके। सो फाइनल थ्योरी एग्जाम्स फॉर क्लास 11 पैटर्न, क्या किसी ने इसको पहले देखा है, कहीं पे पता है आपको? डू यू हर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, कहीं से आपने सुना होगा ये चीज या नहीं सुना है? नॉट एट ऑल, नो आइडिया सर। चलो listen up my dear kids. So basically there will be roman questions, ठीक है, roman question, first roman question so one question, 10 questions, each question carrying, wait, 1 marks for each question, so number of questions will be 10, so 1 into 10 is equals to 10, तो ये 10 मार्क्स का पूरा सेट रहेगा, ठीक है। इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे बच्चों, यू नीड टू सॉल्व दैट, कंपलसरी, जैसे कहते हैं ना कंपलसरी क्वेश्चंस, है ना। नाउ सेकंड रोमन क्वेश्चन, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे उसको हम देखेंगे। सो 1 क्वेश्चन इज कैरिंग 2, तो आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इज इक्वल्स टू कितने मिलेंगे आपको, 10, ठीक है। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, तो इसमें कितने रहेंगे, यहाँ पे आपका था नंबर, यू आर हैविंग नंबर्स 1 to 10, ठीक है ना। सो हियर 11 to 11 12 13 14 15 16 17 18, सो ये वाला नंबर रहेगा, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन में से आपको कितने लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, 5 आउट ऑफ 8, सो हियर इज 10 आउट ऑफ 10, फाइन। नाउ द third roman question, here is also the type of answer you need to make, answer any 5 questions and the mark carried by the question is how much, कितना रहेगा, each question carries 3 marks, so 5 आपको compulsory solve करने पड़ेंगे, you will get 15 marks, is that okay? चलो now यहाँ से नंबर आपका कितना रहेगा, here is also you need to solve 5 out of 8, मतलब यहाँ पे भी 18, मतलब 19 20 21 22 23 24 25 26, तो आपका नंबर जो रहेगा ना 19 से लेके 26 तक रहेगा, ठीक। सो द फोर्थ वन,
सो द फोर्थ वन, फाइन। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा क्वेश्चन फोर्थ में, क्वेश्चन फोर्थ एंड क्वेश्चन फिफ्थ, चलो ठीक है। आंसर एनी टू, आंसर एनी टू क्वेश्चंस, है ना। आउट ऑफ हाउ मेनी, आउट ऑफ तीन, तीन में से आपको दो सॉल्व करने पड़ेंगे। सो ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, सो 5 into 2, मतलब दो सॉल्व करने हैं तो 5 into 2 इज इक्वल टू 10, है ना। सो द 27th, 28th एंड 29, चलो यहाँ पे तीन क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आंसर एनी, सेम वाला पैटर्न, एनी टू क्वेश्चंस। सर फिर 6 में से 4 बोल लेते, वाई यू आर राइटिंग सेपरेटली? अगर ये भी सेम वाला पैटर्न है, 5 into 2 is equals to 10, so you need to say that out of 6 4, why we are writing separately कि सर 30 से लेके 32 तक। लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, इसमें आपको थोड़ा सा बाइफर्केशन कर लेना है। क्या बाइफर्केशन करना है सर? सो दिस इज बिलोंगिंग टू पार्ट 1, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड दिस इज बिलोंगिंग टू पार्ट 2 बुक, है ना। तो ये जो तीन क्वेश्चंस पूछेंगे, इट विल बी फ्रॉम द पार्ट 1, मतलब पहला वाला बुक फिजिक्स का, एनसीईआरटी का। फिर पार्ट 2 से और तीन क्वेश्चंस पूछेंगे, इट विल बी लाइक दैट। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? ओके, सो लिसन अप, अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। दिस वन, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आंसर, आंसर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वाला पार्ट। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। सो दिस पैटर्न विल बी, each question carrying 5 marks, so 5 into 3 is equals to कितना होता है? 15 होता है, fine. So the numericals will be in number, number में कितने रहेंगे सर? So in number my dear kids, चलो एक अलग कलर्स यूज कर लेते हैं यहाँ पे। out of 5 you need to solve 3, ठीक है ना। so it is from 33, 34, 35, 36, 37, चलो। so basically फाइनल थ्योरी एग्जाम पेपर कंटेनिंग 37 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस रहेंगे टोटली? 37 क्वेश्चंस, है ना। सो अगर 37 के 37 सॉल्व कर लेते हो तो दैट इज बेटर, बिकॉज इट इज हैविंग एक्सेप्शंस, इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है सर? सो यहाँ पे देखो 1 1 2, फिर यहाँ पे 3 5, फिर यहाँ पे 3, कितना 8, यहाँ पे 2, सो 10 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा है। मींस out of 37 questions you need to solve कितने? You need to solve 27 questions to get how many marks sir? To get 70 marks in theory. वो perfect अगर लिखोगे so you will get perfectly 70 marks. So remaining 30 marks sir, पेपर तो 100 marks का होता है, so this will be in practical. तो practical की अभी जरूरत नहीं है, so simply I set the pattern of theory, ठीक है, and the pattern of practical is 30. So बच्चों, you know what I did, मैंने आज क्या किया पता है आपको? फॉर द बॉयज फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है उस पे ज्यादा स्ट्रेस देके आई एक्सप्लेन द इंसिडेंट्स। मतलब कुछ भी फिजिक्स वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया टेक्निकली, बट फिजिक्स क्या होता है आई गेव स्ट्रेस ऑन दैट, मींस ओनली ऑन द सिंगल टर्म फिजिक्स। तो मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूंगा रिमेनिंग हाफ एन आवर में, बट उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया, तो वो वाला भी वीडियो मैं ग्रुप में अपलोड करूंगा, और ये वाला भी वीडियो मैं ग्रुप में उनको भी अपलोड करूंगा, सो दैट दोनों आपको टैंडमली हेल्प करना है, इट शुड हेल्प यू टैंडमली, ओके। सो प्लीज वॉच, प्लीज डू वॉच both of the videos, okay, fine. So my dear kids, let me rub this,
फाइनल थ्योरी एग्जाम्स का मैंने आपको बता दिया क्लास 11 का पैटर्न क्या होता है फॉर द स्टेट सिलेबस, बट इट इज यू नीड टू नो दैट, आपको क्या पता रहना चाहिए, इट इज फॉर द स्टेट सिलेबस। ओके सर, एग्जाम्स के पैटर्न बताना जरूरी है सर। बच्चे लोग जब एग्जाम्स नजदीक आएंगे तब समझने का समय नहीं रहेगा, सिर्फ पढ़ने के लिए वक्त रहेगा तब। सो इन द स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग ओनली आई एम गोइंग टू explain all these things to you peoples, ठीक है। Okay, so this is overall about theory. थोड़ा सा ब्रीफ किसका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसका, कॉम्पिटिटिव। सो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मुझे लगते हैं, ओके जो मुझे लगते हैं, दोज आर 4, 4 है। ओके, वन इज स्टेट वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चलो सीई लिख देता हूं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड national wise competitive exams. So state wise we have only one, okay, एक है हमारे पास नंबर में, यहाँ पे 3 है। okay, so state wise you will be having common entrance test। क्या है आपके पास, common entrance test। so इसका जो पैटर्न है सिंगल करेक्ट टाइप पैटर्न है। क्या है, सिंगल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 60 क्वेश्चंस, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चंस। सो 60 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितने मिनट मिलेंगे सर, 60 मिनट मिलेंगे। मींस फॉर वन क्वेश्चन यू नीड ओनली 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको मिलेगा, ठीक है, सीईटी में, ये आपको पता रहना चाहिए। सो दिस विल बी कैरिंग बेसिकली पीसीएम भी लेते हैं, पीसीबी भी लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ राइटिंग द एग्जाम्स। लेकिन इसमें आप एक चीज कर सकते हो, पीसीएमबी, बोथ ऑफ द थिंग्स यू कैन गिव इन द सीईटी सिंस इट इज अ स्टेट वाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। ओके चलो, सो नेशन वाइज के लिए आपके पास कितने हैं, एक आपके पास, यू कैन डिवाइड इट इन टू। वन इज टू बिकम डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स बनने के लिए, डॉग्स बनने के लिए, डॉग्स नहीं डॉग्स, इंजीज, इंजीज बनने के लिए आपके पास रहेगा जेई एग्जाम्स। फॉर डॉग्स यू विल बी हैविंग नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर ये जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड हियर फॉर कैडेट्स, ओके, नेशनल सिक्योरिटी cadets you will be having exams of what, you will be having exams of एनडीए। एनडीए का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ओके, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बिकॉज यू नो ये आपको भी मैं एक्सप्लेन करूं, फिर बाद में बॉयज को भी मैं एक्सप्लेन करूं, इट टेक्स एक्स्ट्रा 2 क्लासेस। तो मैंने क्या कर दिया, हल्का सा उधर मैंने ज्यादा बता दिया उधर फिजिक्स का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कर रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वन टू देम as well as that one to you peoples, तो आपको पता चलेगा। and if you feel any difficulty while understanding the concept explanations, तो आप मुझे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन पर्सनली ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। चलो, सो नीट विल बी कैरिंग पीसीबी, है ना, पीसीबी पैटर्न रहेगा। इसका क्या रहेगा, पीसीएम। ये सर पीसीबी पीसीएम लिख रहे हो, क्या है सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन द सीईटी, ठीक है। मतलब पीसीएम भी आप दोनों चारों लिख सकते हो, किसमें, सीईटी में। बट इन द नीट यू नो, लेकिन यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, if you are taken in the class 12 electronics or CS subject you cannot write biology, but you have chosen biology subject you can write all of the 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड zoology, बॉटनी एंड zoology, ठीक है। each subject will be carrying 45 questions, मतलब
लिसन अप, दैट वीडियो, वो वीडियो कट हो गया बच्चों, एंड ये वाला वीडियो हम रिकॉर्डिंग फिर से रखते हैं, तो आपको जितना मैंने रिकॉर्डिंग रखा था उतना मिलेगा इन दैट वीडियो, ठीक है। सो फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, ठीक है ना, एज वेल एज botany and zoology. So sections will be having in the NEET, and each section carries 45 questions. कितने 45 questions है ना. So every single question carries 4 marks. कितना रहेगा 4 marks every single question. वन क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेगा. तो 4 से आप 45 को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो, बताओ फट से बताओ, क्या टोटली 180 आता है. सो 180 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स कितने सेक्शंस हैं देखिए, 4 sections we have. So biology section will be having more marks. So the number of questions from the biology section कितना रहेगा, कितना रहेगा. So it will be having 90 questions. कितने रहेंगे ये आपके, चलो यार रब करते हैं इसको, कितने क्वेश्चंस रहेंगे 90 क्वेश्चंस. फाइन. तो 90 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आएंगे 360 मार्क्स सर. सो केमिस्ट्री इट विल बी कैरिंग कितना 180 मार्क्स है ना. सो बेसिकली 360 किसके रहेंगे, ये बायोलॉजी का अकेला रहेगा. सो 360 ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना. सो टोटल मार्क्स यू नीड टू स्कोर 720 नहीं, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स, मैक्स मार्क्स रहेंगे. इसमें कट ऑफ रहेगा, कट ऑफ. सो कट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सर, टू फैक्टर्स माय डियर किड्स. वन इज द लास्ट ईयर कट ऑफ, लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे कोई भी कैटेगरी को, कास्ट वाइज हो और हाँ कास्ट वाइज हो, the marks was standing. Say for example for general, so last year general के लिए सर 520 पे खड़ा था, means 520 marks जो भी इससे exceed करेगा इस ईयर को, so the possibility of having the seats for MBBS, ठीक है ना, मेडिकल सीट मिलेगा आपको, MBBS हो या कह लो BDS कह लो. फाइन. सो BDS को वैसे भी आप CET के थ्रू भी जा सकते हो, but the possibility of getting BDS, yeah, maximum marks 720 रहेंगे, right? हाँ. So कट ऑफ लास्ट ईयर को जनरल मेरिट को से फॉर एग्जांपल 520 था, तो यू शुड स्कोर मोर देन 520 दिस ईयर. देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉपिंग द कट ऑफ बिलो 520, तो इस ईयर हो सकता है कि 487 है मान के चलो. तो अगर आप 520 से ज्यादा स्कोर कर लेते हो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द सीट फॉर MBBS. ऐसे रहेगा है ना. Sir, you said that CET will be carrying questions, NEET will be carrying question. तो हम तो solve कर लेंगे sir. If the question is right, we are getting the marks. If the question is wrong, what it will be sir? तो क्या उसके negative marks रहेंगे, क्या marks उसके कटेंगे? Yes बच्चों. So 1/4 जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, negative marking रहेगा. मान के चलो, say for example we are going to take physics as an example, ठीक है ना. So physics as an what example. So the pattern is, say for example negative marking is 1/4 for every wrong question है ना. तो 45 questions में से 30 questions were right questions, ये correct है, ठीक है ना. So 30 questions into 4 कितना आ रहा है 120 आ रहा है, 120 marks. And out of remaining 15 10 questions were wrong and extra 5 questions solve नहीं किया sir, solve नहीं किया, these are wrong. Wrong means 10 into 10 marks, 10 into 10 marks, मतलब for every single question you are getting single mark. तो अगर 10 questions हैं तो into 1 करोगे, into 1 कैसे करोगे, wait for a while, into 1 कैसे करोगे, into 1 with the -1, ठीक है. So -10 marks आ रहे हैं. So this is plus 120 and -10, कितना marks आ रहा है यहाँ पे बच्चों, that is 110 marks. सर कितना easy है सर, कितना easy है सर. This is easy only when you are solving 30 questions. अगर ये इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो इसको, ठीक है. So 10 questions you solved correctly
सो इंटू 4 40 मार्क्स आ गए सर, कितना अच्छा है ना सर। सो 30 क्वेश्चंस वेर रॉन्ग सर, तो -1 मतलब -30। सो 40 प्लस 40 -30 कितना हो गया, वी गॉट ओनली 10 सर। यू गॉट दिस? क्या ये बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? यू स्कोर्ड ओनली 10 मार्क्स। तो कट ऑफ कितना था, जनरल थे आप, इट वाज 520। तो आपने कितना लिया, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10 लिया समझो, बायोलॉजी में समझो कि 30 लिया, कितना हो गया, ओवरऑल 50 हो गया। तो 520 आपको लेना था, बट यू स्कोर्ड 50 मार्क्स, यू आर नॉट गेटिंग सीट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द नीट पैटर्न, है ना। नीट के लिए आपका क्या रहता है, and nowadays government is making so many changes into these type of exams। वो क्या है पता है, they are making best of two। बेस्ट ऑफ टू मतलब 2 बार आपको नीट एग्जाम ईयरली में देना पड़ेगा, दे आर गोइंग टू चूज द बेस्ट वन। सो आउट ऑफ दैट कट ऑफ निकालेंगे। एंड परसेंटाइल कंसेप्ट है, परसेंटाइल, परसेंटाइल नॉट परसेंटेज, परसेंटाइल। ये परसेंटाइल होता क्या है सर, व्हाट इज दिस परसेंटाइल? you know there will be number of, you know number of, क्या कहते हैं इसको, number of exams will be going to conduct batch wise। so batch 1 बैच 1 में एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 10,000, ठीक है ना, 10,000। एंड इन बैच 2 समवेयर अराउंड 8,000, ठीक है। So ऐसे ही number of divisions, number of batches they are going to make। So each batch carrying different question paper, each batch carrying different question paper। Sir, then what about difficulty sir? हो सकता है कि sir difficulty for batch 1 it will be different, है ना। So for batch 2 difficulty अलग हो सकता है sir। Yeah, there may be a possibility like that, there may be a possibility like that। Are you getting my point? Yeah। सो हो सकता है कि से फॉर एग्जांपल इसमें कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे, 180 क्वेश्चंस। सो एक सब्जेक्ट का ले लेते हैं 45 फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स के अगर 45 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आर इजी, 10 क्वेश्चंस आर मीडियम, 5 क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? सो ये वाला पैटर्न हर पेपर में रहेगा। सो क्वेश्चन जो बैच 1 में रहेगा वो बैच 2 में रिपीट नहीं होगा, जो बैच 2 में रहेगा वो बैच 3 में रिपीट नहीं होगा। इट मींस दैट if 8 batches exams has been run in 8 batches for 4 days, ठीक है। for every single day 2 batches रहेंगे, कितने रहेंगे, 2 batches ऑनलाइन एग्जाम्स, ठीक है। सो यू नो व्हाट, इसमें होगा क्या, 10,000 8,000 इस तरह से बच्चे भाग लेंगे। एंड say for example seat distribution throughout all over India, seat distribution throughout all over India is 8,000 सीट्स फॉर मेडिकल, मेडिकल्स के सिर्फ 8,000 सीट्स हैं ऐसे मान के चलो। फॉर एवरी सिंगल बैच दे आर गोइंग टू डिवाइड द नंबर ऑफ सीट्स एज पर पॉपुलेशन, कितना स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं, ओके। तो इसमें 10,000 दे रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन से सीट्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड बैच 2 में 8,000 रहेंगे, उसी प्रोपोर्शंस को सीट को डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? with respect to that number of students they are going to allot the seats, fine। अभी सीट अलॉटमेंट के बाद, सीट अलॉटमेंट के बाद समझो फर्स्ट बैच को सीट कितने अलॉट हुए हैं, 1200 सीट्स ऑफ मेडिकल, है ना। सो इसमें 1 to 1200 रैंकिंग्स को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, फ्रॉम 1 to 1200 रैंकिंग्स, है ना। सो 1 to 1200 रैंकिंग्स कैसे चूज किया जाएगा? Say for example in batch 1 someone scored 98%। एक कोई बंदा है फर्स्ट रैंक है, उसका परसेंटेज कितना हुआ है, फर्स्ट रैंक बंदे का he scored 98%, which is maximum percentage,
98% ऑफ द फर्स्ट रैंक स्टूडेंट, ठीक है। तो इस 98% को 100% माना जाएगा। ओके, with respect to this first student, other students will be going to you know compared, तो उनको कंपेयर किया जाएगा किससे? 98% के साथ, क्योंकि 98% ही 100% है। तो जो सेकंड हो या थर्ड हो या फिफ्थ हो, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर गोइंग टू कंपेयर विद दिस किड। तो इससे कंपेयर करने के बाद 100%, कोई बंदा 96% कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर कोई 98 किया है, इस 98% का 96% किया है। सो दिस 98 इज कंसिडर्ड एज 100 परसेंटाइल, इसको 100 परसेंटाइल बोला जाएगा। सो विद दिस 100 परसेंटाइल, किसी ने 96 परसेंटाइल कर दिया, सो द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ हैविंग 96 परसेंटाइल, सो इसके जो सीट डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन कास्ट वाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जनरल के लिए इतने सीट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कास्ट के लिए इतने सीट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, द सीट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लाइक दैट। या सो नीट का भी सेम पैटर्न होगा, जेई मेंस का भी सेम पैटर्न होगा, जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। तो जेई में दो एग्जाम्स होंगे, एक मेंस होगा, दूसरा एडवांस्ड होगा, है ना। तो उसको डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, मेंस का और एडवांस का। बस थोड़ा सा आपको उसका मार्किंग का मैं पैटर्न एडवांस का नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेंस का बताऊंगा, क्योंकि एडवांस का प्रेजेंटली इट इज नॉट नेसेसरी। बस उसका बताऊंगा कि एडवांस में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मार्क्स का कैसे है जेई एडवांस का, इट इज नॉट फिक्स्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माय डियर किड्स। जेई एडवांस एग्जाम इज द ओनली एग्जाम्स व्हिच विल बी नॉट हैविंग पैटर्न ऑफ मार्क्स फिक्स्ड, तो उसका वेरी करते रहता है, सो वी कैन नॉट मेक इट एज अ फिक्स वन। फाइन, आई थिंक दिस इज, ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया। तो जेई के भी जो बैचेस होंगे वो भी ऐसा ही होगा, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटाइल्स, है ना। तो नीट का भी ऐसे ही कॉमनली बनते जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसे नहीं था, इट वाज बेस्ड अपॉन परसेंटेज, बट द कॉमन बॉडी which is done by the educational department, central educational department, तो नीट और जेई के लिए एक ही पैटर्न सेट कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू दैट। जेई मेंस लेवल और नीट का लेवल एक ही होना चाहिए। फाइन, ओके। सो जेई, ई, जे डबल ई क्या होता है? You know, in the many of the hoardings of different colleges, आपने देखा होगा, we used to teach JEE, IIT, AIEEE, and फिर बाद में क्या रहेगा? IIT JEE, ठीक है? They used to write like this, which is wrong, ठीक है? क्योंकि जो means some colleges they are simply to make advertise of these IITs, इस तरह से लिखना। होर्डिंग्स पे AIEEE भी सिखाएंगे हम लोग, IIT भी सिखाएंगे, जेई भी सिखाएंगे, IIT जेई भी सिखाएंगे। दे डोंट नो हैव द प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस वन, उनको प्रॉपर आइडिया ही नहीं होता है। सो हाउ दे आर गोइंग टू पुट इट ऑन द होर्डिंग्स देन? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को ऐड करके कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। सो बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, यहाँ पे AIEEE क्या होता है? AIEEE, so all India engineering entrance exams, ठीक है। nowadays this body is mixed in IIT body। किसमें? IIT body में। तो पहले सर IIT एग्जाम्स करके सुनते थे सर हम लोग, we used to listen that IIT exams, yes बच्चों, this is also included into this, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसका नया नाम बना है JEE, ठीक है, इसका नया नाम बना है JEE। Then what was this sir? AIEEE क्या था? AIEEE, it was the body, it was conducting exams, fine, on the based upon syllabus of NCERT, है ना। ये NCERT के मतलब इसके बेसिस पे ये वाले एग्जाम्स कंडक्ट करते थे। So then what about this IIT exams? So this is just like CET, ये पहले आपका CET जैसे था, after class 12, after class 12,
ये लोग एग्जाम्स कंडक्ट करते थे। तो जस्ट लाइक सीईटी ये आईआईटी एग्जाम्स था, ठीक है। तो सर फिर ये एआई ट्रिपल ई था, ये भी तो सीईटी जैसा एग्जाम था। यस माय डियर किड्स। तो दो बॉडी थे, सो टू बॉडीज वेर कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डिसाइड कि दोनों को हटा दिया, दोनों दोनों को हटा के सिर्फ एक बॉडी बनाई, ठीक है। क्या बॉडी बनाई, एक बॉडी बनाई, दैट इज कॉल्ड एज जेईई। तो इसमें दो फेजेस बनाए, टू फेजेस। वन इज जेई मेंस लेवल, जे डबल ई मेंस लेवल, है ना। फिर दूसरा बॉडी बनाया, दूसरा फेज बनाया जे डबल ई एडवांस्ड लेवल, है ना। एंड दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय विच बॉडी, जो पहले की थी ना, एआई ट्रिपल ई, है ना। एंड दिस एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड बाय, ये वाला पैटर्न कौन कंडक्ट करता है, डबल आईटी बॉडी, डबल आईटी बॉडी। फाइन। सो डबल आईटी बॉडी क्या होता है सर, सो दीज आर द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स माय डियर किड्स। ये क्या है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स। हमारे बीजापुर में कौन सा वाला इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, टेल मी। बीएलडी, है ना, बीएलडी ए इंजीनियरिंग कॉलेज, सीकैप, इज दैट करेक्ट। सो दीज टू, ऐसा नेशनल लेवल का जो आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इट इज समवेयर अराउंड, द नंबर इज 23 to 27 थ्रू आउट इंडिया, है ना। सो जो 20 और 4 जो है एक्स्ट्रा, दीज आर द न्यू वंस। सो बेसिकली इट वाज अर्ली 17, 13 ओरिजिनल थे, तो उससे नंबर हमने बढ़ा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, समवेयर अराउंड 23 to 27। फाइन। सो दिस बॉडी विल बी गोइंग टू कंडक्ट जेई एडवांस लेवल एग्जाम्स, है ना। ओके। एंड जेई मेंस लेवल, इट इज कंडक्टेड बाय एआई ट्रिपल ई। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग टू एग्जाम्स, ठीक है। लेट मी टेल यू माय डियर किड्स। सो आफ्टर पासिंग दिस एग्जाम, ये वाला एग्जाम जब आप पास करते हो, so you will get the seat in triple IT, triple IT engineering colleges, ठीक है ना, engineering colleges, as well as NIT, National Institute of Technology, इसके इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको सीट्स मिलते हैं इफ यू पास आउट दिस वन। लेकिन इसमें भी कट ऑफ होते हैं, तो वो कट ऑफ को आपको पार करना पड़ेगा। सो व्हेन यू गेट दैट, you'll get the seat in the triple IT as well as NIT। आपको डबल आईटी में नहीं मिलेगा, डबल आईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं मिलेगा इफ यू पास ओनली जेई मेंस। यू हैव टू पास बोथ जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस लेवल, ठीक है ना। सो जब इसको आप पास करोगे तो आपको डबल आईटी में सीट्स मिलेंगे, ठीक है ना। डबल आईटी एज वेल एज एमआईटी, एमआईटी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ यूएसए, उसमें भी आपको सीट मिलने के पॉसिबिलिटीज होते हैं इफ यू पास द जेई एडवांस लेवल एग्जाम्स। दिस इज अ फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए टू डू इंजीनियरिंग इनटू यूएसए। द मोर वैल्यूएबल इज डबल आईटी एज वेल एज एमआईटी। तो ये भी वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं कि इसका कुछ वैल्यू नहीं है, दीज टू आर आल्सो वैल्यूएबल। इज दैट क्लियर? क्या मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आने जैसा समझा पाया? Yeah, I will tell about UPSC. Fine. So if it is yes, then thank you. आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने फिजिक्स के बारे में आज बहुत ही कम समझा है, सिर्फ एग्जाम्स के बारे में और सिलेबस के बारे में आपको डिस्कशन करवाना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर किड्स। ये चीजें नहीं पता रहने की वजह से सिंपली हम यहीं पे घूमते रहते हैं। फाइन, ओके। So now NDA, National Defense Academy. I'm not going to explain more about this क्योंकि 5 मिनट सिर्फ बचे हुए हैं मेरे पास, मुझे सिर्फ 1-2 मिनट में इसको मैं कंक्लूड करूंगा। So the long form of this is National Defense Academy. Fine. So NDA or NA, Naval Academy. So after class 12 you are going to give these exams. जैसे आपने IIT NEET CET देना है ना, वैसे ये
आपको ये देना पड़ेगा. It will be having two phases. One will be for the English exams. Another one will be for the GK. ठीक है. So इसके दो रहेंगे. दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? Eligible बनना पड़ेगा to pass this marks. Sir, after passing this exams, because I'm going to take the video over the NDA or Naval Academy separately, my dear kids. इसका थोड़ा lengthy हो जाएगा. So यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा मैं. ठीक है. इंग्लिश एज वेल एज जनरल नॉलेज यू नीड टू गिव. तो इंग्लिश में तो आपको बेसिकली ग्रामर रहेगा एंड जीके इट विल बी कैरिंग करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, फिर मैथमेटिक्स और बहुत सारी चीजें होंगी इसमें. ठीक है. सो यू नीड टू क्लियर आउट दिस. एलिजिबल बनना पड़ेगा दोनों में. सो आफ्टर क्लियरिंग आउट दिस, नेवल एकेडमी का भी वैसे ही कुछ होगा एग्जाम, है ना. तो उसमें भी पैटर्न ऐसा ही कुछ होगा. बट after this you can get selected as a officer in the army or officer in the air force or officer in the navy or officer in the uh, combined defense forces. combined defense forces. सर ये क्या होता है? हमको तो ये तीनों पता चल गए. क्या? आर्मी पता चल गया जो कि ग्राउंड बेस्ड फोर्स रहता है, एयरफोर्स विंग बेस्ड फोर्स रहता है, शिप बेस्ड फोर्स. व्हाट अबाउट दिस सर? कंबाइंड डिफेंस फोर्स. इन तीनों को जो कंबाइंड बना के जो एक बैलेंस बनाते हैं ना, उसको कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस बोलते हैं. वो एक अलग से यूनिट होता है. ओके. नाउ प्रेजेंट डे कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस के चीफ है ना, सीडीएस, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. दैट इज बिपिन रावत. बिपिन रावत. ठीक है. So after passing this you can go there. So NDA exams now, I think since from 2 years or 3 years girls also can join this. पहले girls का नहीं था option. From 2 years I think it has started for the NDA. चलो ये हो गया. Now I will come, I will be having only 2 minutes my dear kids. सिर्फ 2 मिनट है तो एक extra 3 minutes लूंगा. एक और एक एग्जाम है. So UPSC. So this exam is to make you IAS officer, DC or IPS officer. ठीक है ना. So the long form of this exam is Union Public Service Commission, है ना. सर कर्नाटका का भी कोई ऐसा एग्जाम होता है फॉर स्टेट लेवल? यस माय डियर किड्स, इट इज कॉल्ड एज KPSC. ओके. कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन. दिस इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मींस नेशनल लेवल. ठीक है ना. तो इट विल बी हैविंग 3 phases. इसमें 3 phases होंगे. So first phase is preliminary phase. Okay. Then mains phase. Then interview phase. So interview में interview भी होता ही है. Interview होता है as well as I think क्या कहते हैं उसको, डिस्कशन वाला भी एक मोड होता है. आई डोंट हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट दिस वन. डिस्कशन अबाउट मींस they will give, say for example, if you get selected into interview, they will give one single topic. Over that, some 20 members of the interview, those who are get selected into the interview, they ask us to they ask you to give make a discussion, proper discussion over one particular subject. तो उससे जो 20 लोग हैं ना, वो पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट बनाते हैं. आई थिंक दे आर ऑल्सो गोइंग टू गिव मार्क्स फॉर दैट. आई थिंक, आई डोंट नो दैट, द वे हाउ यू डिस्कस द थिंग्स. जो कंबाइंड डिस्कशन होता है ना, वो चीज करने के लिए कहते हैं. तो उसको छोड़ देंगे. नाउ द मेंस विल बी हैविंग 9 सब्जेक्ट्स. यहाँ पे 9 सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके पास, है ना. सो दिस विल बी हैविंग 2 सब्जेक्ट्स. एक होता है आपका जनरल स्टडीज और दूसरा होता है जनरल स्टडीज 2. सो वन इज बेस्ड अपॉन कंप्लीटली जीके. ठीक है. अनदर वन इज बेस्ड अपॉन द एप्टीट्यूड एग्जाम्स, जो बैंकिंग वाला होता है ना वो. सो दिस विल बी हैविंग 2 लैंग्वेजेस. वन इज इंग्लिश, जो कि कंपल्सरी रहेगा,
another one will be whichever language you choose. समझो मैंने हिंदी चूज किया है, नहीं सर हम कन्नड़ा यूज करेंगे, चूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इट इज योर चॉइस. someone will say sir urdu marathi, it is your choice, this will be choicing, है ना, ये choicing रहेगा. ये तो दो हो गए. द थर्ड वन इज ऐसे, ऐसे राइटिंग. सो ऐसे राइटिंग आपको हाई स्कूल डेज में प्रैक्टिस करवाया जाता है, बेसिकली इन हाई स्कूल. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव एग्जाम्स ऑफ दिस वन, ऐसे वाला. ठीक है, तो तीन तो हो गए आपके. एंड द रिमेनिंग विल बी जनरल स्टडीज पेपर वन, जनरल स्टडीज पेपर टू, है ना. तो ये जनरल स्टडीज दोनों एक ही होता है. एंड जनरल स्टडीज पेपर वन, जनरल स्टडीज पेपर टू. तो ये वाला जनरल स्टडीज सेकेंड सब्जेक्ट होता है, ये वाला फर्स्ट सब्जेक्ट होता है. ओके, सो लाइक दिस. एंड टू अदर सब्जेक्ट्स, वन इज से फॉर चॉइसिंग वाले रहते हैं. से फॉर एग्जांपल आई हैव चोजन पब एड मींस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक सब्जेक्ट रहेगा. एंड अनदर वन इज से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आप ले सकते हो, तो वो एक सब्जेक्ट रहेगा. ओवरऑल 9 सब्जेक्ट्स विल बी हियर. सो इट विल बी लाइक दिस. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आई बच्चों? तो इन फेजेस से जब आप पार होते हो, सो यू आर गोइंग टू क्रैक द यूपीएससी. सो आफ्टर हैविंग दिस देयर विल बी रैंकिंग. ठीक है, रैंकिंग रहेगा. तो रैंकिंग में समझो 1 to 30 आते हो, 1 to 30, तो आपको ऑप्शन रहेगा आईएफएससी और नहीं आईएफएससी नहीं, आईएफएस और आईएएस में चुनने का. बट इफ यू आर इन 1 to 10, सो यू हैव टू सेलेक्ट. आपको ज्यादा से ज्यादा वो लोग यूपीएससी वाले दे आस्क यू टू चूज दिस वन ओनली. विच वन? आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस. सो दे विल आस्क यू टू डू दिस इफ यू आर सो मच इंटेलिजेंट. नो, 1 to 30 है तो आपको बोलेंगे कि चूज कौन सा भी करो. यू कैन चूज फॉर आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एज अ डीसी ऑफिसर, है ना. सो आफ्टर 30 टू से फॉर एग्जांपल 200 रहेगा. So you will be having option of choosing IAS or IPS depending upon what seats, है ना. कुछ वो लोग बोलेंगे you got selected to IAS and you will ask no sir I don't want to become IAS, I want to become police officer, IPS. So it is your choice. So IAS is Indian Administrative Service, IPS is Indian Police Service, है ना. Indian Revenue Service, बहुत सारे होते हैं ऐसे. So क्या मैंने आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आए जैसा कुछ किया एग्जाम्स के बारे में? एंड वन थिंग, एक चीज मैं भूला, दिस एग्जाम यूपीएससी एग्जाम यू शुड नॉट गिव आफ्टर क्लास 12. क्लास 12 के बाद नहीं, आफ्टर एनी डिग्री कंप्लीशन. क्या? एनी डिग्री कंप्लीशन, कोई भी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, नॉट डिप्लोमा. डिप्लोमा इज नॉट अ डिग्री. सो I'm talking about university degree which is valid. BSc, okay, BCA, BA, BCom, BBA, okay, and BE engineering, है ना, MBBS, these all are degrees. BDS, BSc agriculture. क्या मेरी बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों? Yes sir. Okay, understood. Fine, the class is over. Extra 5 minutes I took, my dear kids. I'm really sorry for that. Today आज physics पे कुछ discussion नहीं हुआ. You will be having the video regarding physics. आप boys के section में का देख सकते हो. I'm going to upload that. So it will, and this will be going to help more to the boys also. आप लोगों को तो ऐसे ही मिल गया ये चीज. Fine. चलो लास्ट को थोड़ा कंक्लूजन करते वक्त फिजिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं. व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द नेचर एंड its natural phenomena and its natural phenomena. Or else second definition of physics, physics is the branch of science that deals with the matter and energy, है ना. और तीसरा definition, physics is the branch of science that deals with the
motion and its studies. Simple है. Systematic study. Okay, it is a systematic study. Yeah, it is the systematic study of nature and natural phenomena. Fine. So my dear kids, आज I think this may be going to help you more in your future career. मैंने आपको थोड़ा सा कहते हैं ना फ्यूचर आपका दिखा दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहोगे, है ना. क्लियर आइडिया रिगार्डिंग नीट, जेई, सीईटी, एनडीए, यूपीएससी. ये 5 एग्जाम्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे. यूजुअली आई वोंट डिस्कस दीज थिंग्स विद द स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही मूड भी बन गया एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड, राइट. चलो, bye my dear kids. Wait, take the attendance Vaishnavi Mat of the whole number of students, all number of students, as well as Pratiksha. Please do that if you are there. Sir, send record to the group. Yeah, sure. Okay, Rakshita, please. Thank you. Attendance तो बहुत new. 2-3 लोग लेंगे तो कम से कम सही तो लेंगे. Good day my dear kids. Good day. Bye. Shall I close the class? Attendance हो गया? Okay. चलो.